In the last video, we started with the social issues section and we have covered around 3 articles. In this video, we are continuing with the same series and our next article is Smart Cities Mission and Rankings. Welcome to Diplomacy of UPSC with a Future Diplomat. The Urban Housing and Urban Affairs Ministry has named Indore as the best city and Madhya Pradesh as the best state in the India Smart City Awards 2022. So Indore and the state of Madhya Pradesh has been rewarded as the best state and best city respectively in India's Smart City Awards. Surat and Adra have secured the second and third rank respectively, and in terms of the state, the Tamil Nadu has secured the second rank and the third prize has been shared by Rajasthan and Uttar Pradesh. The cities were selected on the basis of their rankings in terms of the projects, in terms of the progress of projects कि वो कितने projects complete कर रहे हैं, project का outcomes क्या निकल रहा है, and the presentation submitted for the awards. These were the criteria on which the jury decided to give the rank to the cities and the states. So what is Smart Cities Mission? चलिए देखते हैं. This Smart Cities Mission was launched by the Union Government in June 2015. The main objective of this mission was to promote the cities to provide the core infra, clean and sustainable environment, and give a decent quality of life through application of smart solution. That means कि cities को promote करना है कि वो core infrastructure जैसे roads, railways, ठीक है, आप तो ये कॉलोनीज में जो रोड्स होती हैं वो सारी हो गई, फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, ये सारे आपको कोर इंफ्रा में आएंगे, एज वेल एज क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, एंड अल्टीमेटली उन सभी का एम है डैट टू गिव ह्यूमन लाइफ अ डिसेंट क्वालिटी, ठीक है, एंड देयर सिटीजन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन. तो स्मार्ट सॉल्यूशन जो है उनके एप्लीकेशन से ये सारी चीज़ों को प्रदान करना, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन. क्लियर? So what was the need of such mission? Cities accommodate 31% of India's current population and contributes to the 63% of GDP. This you can quote it in the answer writing. That this city accommodates 31% of the world's population, of India's population. लेकिन उसका GDP में contribution 2x से भी ज़्यादा है. Because 31 into 2 that is 62 and it contributes to 63% of the GDP of India, and this has been counted on the basis of census 2011. By 2030 as our assumption है that the urban areas expanded to accommodate 40% of India's population and contribute towards the 75% of India's GDP. That means 40% जो पॉपुलेशन है उसको अकोमोडेट करेगी जो अर्बन एरियाज है, लेकिन उनका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होगा 75%, दैट इज 3/4 ऑफ इंडियाज जीडीपी. क्लियर? The urban growth in cities has led to infrastructure management and service delivery challenges. Everybody knows कि जैसे जैसे सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ती है वहाँ पे जो रहने की सुविधाएं होती है उनमें काफ़ी डिटोरिएशन आता है. क्लियर? स्लम्स यूज्ड टू गेट डेवलप्स इन लार्ज सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, एंड जो भी बड़े बड़े शहरें हैं वहाँ पे स्लम्स बहुत ज़्यादा है. उनकी वजह से जो क्लीनिंगनेस की इशू हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज, ये सारी चीज़ की इश्यूज आती है, और उनके सर्विस की जो गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी है उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, इन सारों का चैलेंजेस का समाधान निकालना अपने आप में इज़ अ ग्रेट टास्क. The focus on the sustainable and inclusive development and the idea to look compact areas create a replicate model to serve as a beacon of the other aspiring cities. Similarly, ये जब चैलेंज है तो एक एस्पिरेशन भी है कि हम और आगे बढ़ सके to give citizens a better quality of life, better infra and सर्विस डिलीवरी जो गवर्नमेंट की तरफ से हो वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो. ठीक है, सो स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, तो उसके कुछ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम देखते हैं. तो सबसे पहले जो फोकस है इट इज़ ऑन द एडिक्वेट वाटर सप्लाई, डैट हर घर नल से जल, ये अभियान चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. सो टू एंश्योर एडिक्वेट वाटर सप्लाई इज वन ऑफ द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन. सैनिटेशन, दैट मीन्स क्लीनिनेस, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है.
थर्ड इज अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पुअर्स स्पेशली, गुड गवर्नेंस हो सके, ई गवर्नेंस की ओर हमारी सरकार कदम बढ़ाए, सिटीजन के पार्टिसिपेशन हो, जो भी मॉडल्स हैं, पॉलिसीज फॉर्मेशन है, उन सभी में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दैट शुड बी इंश्योर्ड टू द सिटीजन्स, है ना, पर्टिकुलरली वुमेन, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। तो ये सारी चीज़ें भी इंश्योर है, दैट वुड लीड इंडिया और एनी सिटी बिकमिंग अ स्मार्ट सिटी। बिकॉज जब तक आपकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंश्योर्ड नहीं है, आप कितनी भी अच्छे इंफ्रा बना लो, हाउ मच गुड द रोड्स आर, हाउ मच गुड द ड्रेनेज सिस्टम आर, एवरीथिंग आर, if your safety is not ensured, how would you know how would you feel secure about your life being? इसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, ठीक है। और जैसे अभी के समय पर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हमारी पुलिस सिस्टम है, आई वुड से कि बहुत सारे आप लोग को भी लगता होगा, मुझे भी लगता है कि पुलिस को देख करके सिक्योरिटी से ज़्यादा डर लगता है ना। तो ये सारे इश्यूज को दूर करने की ज़रूरत है। देयर शुड बी police reforms, although the government has sent the bill in the monsoon session of police reform and judicial reforms to the parliamentary panel. हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में जो आपका पुलिस रिफॉर्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म है वो आ जाए, बट एट प्रेजेंट तो अभी नहीं है। तो इसी के लिए हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ केयर एंड इंफ्रा एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, स्पेशली एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन एंड हेल्थ केयर फॉर द चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पीपल। एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज नॉट रोबस्ट, इंडस्ट्रीज वॉन्ट डेवलप, बिकॉज इंडस्ट्रीज लीड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। नॉट ओनली द इंडस्ट्रीज, द अर्बन हाउसिंग एंड एवरी पीपल, आप अदर बेसिक नीड है आज के समय इलेक्ट्रिसिटी की, एंड देर इज अ हाई नीड कि हम एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसका रोबस्ट हो, और वो एक हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिल सके, ठीक है। एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी, और देयर शुड बी मल्टीपल वेज फॉर अर्बन मोबिलिटी, थ्रू रोड्स, थ्रू रेलवेज, थ्रू इनलैंड शिप्स। जैसे आपकी गवर्नमेंट की भी ई बसेस चलनी चाहिए, रेलवेज में लोकल ट्रेन्स होनी चाहिए, लोकल ट्रेन्स में भी अपग्रेडेशन हो करके मेट्रो की सुविधा होनी चाहिए, इनलैंड शिप्स भी हो, जैसे कि आपका जो कोस्टल एरियाज है वहाँ के लिए, रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटाइजेशन होना चाहिए, एंड अर्बन इन्वायरमेंट। दिस वेर द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन, और इसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया है। क्लियर? कवरेज ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन, so the mission will cover 100 cities and has been distributed among the state and union territories on the basis of equitable criteria. तो टोटल 100 ऐसी शहरों को सेलेक्ट किया गया है, and those cities will be converted to smart cities. Clear? The formula gives equal weightage, that is 50-50, to urban population of the state or UT and the number of statutory town. Statutory town क्या होता है? जिसमें ऐसा टाउन जिसमें म्यूनसिपैलिटी हो, कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, नोटिफाइड एरिया टाउन हो इन एनी स्टेट और यूटी, ठीक है। तो 50% वेटेज जो है अर्बन पॉपुलेशन वाले को दिया गया, एंड 50% वेटेज स्टैट्यूटरी टाउन से नंबर्स को दिया गया। क्लियर? बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, each state and UT will therefore have a certain number of potential smart cities, with each city and UT having at least one. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एक शहर ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप गुजरात ले लो, गुजरात के स्टेट में मे बी 5 स्मार्ट सिटीज़ का प्रपोजल हो, बट एट द सेम टाइम आप कोई अदर राजस्थान ले लो तो हो सकता है वहाँ पे 7 हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे 4 हो। सो इट विल बी डिसाइडेड ऑन दिस फार्मूला, जिसमें कि इक्वल वेटेज दिया गया है अर्बन पॉपुलेशन इन द स्टेट एंड यूटीज एंड द नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स, ठीक है। बट एटलीस्ट 1 तो होगा ही। सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन? कंपोनेंट्स ऑफ द एरिया बेस्ड डेवलपमेंट इन द स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें कि सिटी इंप्रूवमेंट किया जाए, दैट इज नोन एज रेट्रोफिटिंग। सिटी रिन्यूअल मतलब रीडेवलपमेंट, जहां पर भी रोड्स टूटे हुए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, उन सबको बनाना। एंड सिटी एक्सटेंशन, दैट इज ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट अलॉन्ग विद अ पैन इंडिया इनिशिएटिव। ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है, देखो देर इज 2 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, वन इज ग्रीनफील्ड, वन इज ब्राउनफील्ड, ठीक है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, दैट फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिटी जहां पर अभी लोकल ट्रेन चलती है, ठीक है, एंड फ्रॉम दी
नॉन एयर कंडीशन लोकल ट्रेन, हम उसको एयर कंडीशन कर दे रहे हैं, एंड वी आर कन्वर्टिंग द नॉन एयर कंडीशन लोकल ट्रेन टू एयर कंडीशन लोकल ट्रेन. दैट डेवलपमेंट विल बी नोन एज ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट. अब ब्राउन फील्ड क्यों? गो विद द वर्ड एसोसिएशन फील्ड और उसमें कुछ ब्राउन, दैट मीन्स पहले से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है, पहले से इम्प्रूवमेंट है, हमें उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है. सो दैट इज ब्राउन फील्ड. बट ग्रीन फील्ड ऐसा है दैट आपका फील्ड में कुछ भी नहीं है, नाउ यू हैव टू डेवलप. ओके, दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड. सो ग्रीन फील्ड का हम एग्जांपल ले लेते हैं दैट एक शहर में लोकल ट्रेन है, ठीक है, अगर हम उसका अपग्रेडेशन कर देते एसी लोकल ट्रेन का, दैट वुड बी ब्राउन फील्ड. बट अगर हम लोकल ट्रेन के अलावा एक ऑल्टरनेटिव बना देते हैं दैट इज मेट्रो, तो वो आपका ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट हो जाएगा. दैट मीन्स अ न्यू कंस्ट्रक्शन इज अ ग्रीन फील्ड एंड ओल्ड रिन्यूअल होगा तो वो ब्राउन फील्ड है. क्लियर? तो कंपोनेंट्स ऑफ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में 100 स्मार्ट सिटीज चुना गया था और वो कंप्राइज करता है सिटी इंप्रूवमेंट दैट इज रेट्रोफिटिंग, सिटी रिन्यूअल, रीडेवलपमेंट एंड सिटी एक्सटेंशन दैट इज ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ पैन इंडिया इनिशिएटिव. एरिया बेस्ड डेवलपमेंट that will transform existing areas including slums into a better planned residential areas by retrofitting, redevelopment and thereby improving the habitability of the whole city. ठीक है, तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में है आपका कि जो एग्जिस्टिंग एरिया है उनको ट्रांसफॉर्म करना है जिसमें स्लम्स भी आ रहे हैं, जिससे कि एक बेटर रेसिडेंशियल एरियाज में उनको डेवलप किया जाए, रेट्रोफिटिंग के मेथड को यूज़ करते हैं एंड रीडेवलपमेंट के मेथड को यूज़ करते हैं एंड देयर बाय इंप्रूविंग द हैबिटेबिलिटी ऑफ द होल सिटी. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंडर में वो नए एरिया डेवलप होंगे जिसमें सिटी एकोमोडेट करेगी एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को. इसको आप इस चीज़ से समझो डैट कोई एक शहर है, फॉर एग्जाम्पल रांची. रांची का अगर आप होल स्क्वायर फीट में एरिया देखोगे तो हो सकता है वो 500 स्क्वायर फीट हो. 500 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर्स आप मान लो या 50 किलोमीटर्स ही मान लो, ठीक है, 50 स्क्वायर किलोमीटर है, 50 स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है. अब अगर हम इसको एक्सपैंड करते 70 स्क्वायर किलोमीटर्स पे इसको ले जाते हैं, सो दैट वुड बी एक्सपेंशन ऑफ द सिटी एंड दैट डेवलपमेंट इज नोन एज ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट. क्लियर? आपको अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. तो उन डेवलपमेंट को हम लोग ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट बोलेंगे. पैन सिटी डेवलपमेंट क्या होता है? पैन सिटी डेवलपमेंट एम्फसाइजिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ द सेलेक्ट स्मार्ट सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग सिटी वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट मीन्स जो भी प्रॉब्लम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका स्मार्ट सॉल्यूशन को ढूंढना और उसको अप्लाई करना, दैट इज पैन सिटी डेवलपमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन. गाइडलाइंस ऑन द स्मार्ट सिटी प्रोवाइडिंग मॉनिटर एट द 3 लेवल. 3 लेवल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. वन इज एट द नेशनल लेवल, द सेकेंड इज एट द स्टेट लेवल एंड द थर्ड इज एट द सिटी लेवल. सो अगर आप इसको यहाँ पर अगर एक पिरामिड के फॉर्म में देखोगे तो दिस इज योर नेशनल, दिस इज योर स्टेट एंड दिस इज योर सिटी. ये नहीं रहेगा आपका, ये हो गया आपका सिटी. क्लियर? तो ये है नेशनल लेवल दैट विल कंप्राइज सबसे लार्जर बेस, उसके बाद आपका सिटी होगा, स्टेट होगा, उसके बाद आपका सिटी होगा. नेशनल लेवल पे एक एपेक्स कमेटी बनाया जाएगा जो हेड करेंगे सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और उसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम द रिलेटेड मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. और वो जो एपेक्स कमेटी होगा इट हैज़ द मैंडेट टू अप्रूव प्रपोजल्स, मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड रिलीज द फंड. ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दिस कमेटी का. एपेक्स कमेटी मतलब सुप्रीम कमेटी होती है. जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो कभी कभी एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, इंडिया में नहीं बोलते बट बहुत जगह पे बोलते हैं और ग्रामेटिकली भी ये सही होता है. सो दिस कमेटी, इसमें सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट रहेंगे एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिलेटेड मिनिस्ट्रीज ऑन ऑर्गेनाइजेशन. और उनका वर्क होगा दैट इट हैज़ द मैंडेट टू अप्रूव द प्रपोजल्स. प्रपोजल दे विल अप्रूव, they'll monitor the progress and they'll have the mandate to release the fund. Okay, अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे, दैट इज स्टेट. अ हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी HPSC उसका गठन किया जाएगा एंड दैट वुड बी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द हेड, दैट मीन्स द टॉप मोस्ट IAS ऑफिसर ऑफ द स्टेट. एंड
that would steer the smart city mission as a whole. That means chief secretary of the state जो होंगे, he or she will be the head, और वो स्मार्ट सिटी मिशन पूरे स्टेट में जो है उनको हेड करेंगे, और उन्हीं वो HPSC जो कमेटी है उनको भी हेड करेंगे. मतलब कुल मिलाकर जो चीफ सेक्रेटरी है, ही विल बी द सोली रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि स्मार्ट सिटी मिशन को उस स्टेट में देखेंगे. अब आते हैं सिटी बेसिस पे. दैट इज योर थर्ड स्टेज. अ स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम. कोई कमेटी तो नहीं बनाया जाएगा, बट देयर वुड बी अ फोरम नोन एज स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम इन ऑल द स्मार्ट सिटीज कंप्राइजिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्पेशल पर्पस व्हीकल. SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, ये क्रिएट किया जाता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एट द सिटी लेवल. ठीक है. इट्स रोल इज टू रिलीज फंड, implement, monitor, evaluate the smart city development projects. MP, member of legislative assembly, that is MLA, mayor, local youth, technical experts, representative of the area resident welfare association to enable and advise the collaboration. So ये सिटी में आपका स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम होगा. ये सारे स्मार्ट सिटीज में इसका गठन किया जाएगा, एंड दैट वुड कंप्राइज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर as well as the CEO, that is Chief Executive Officer of the Special Purpose Vehicle. और इस स्पेशल पर्पस व्हीकल का रोल होगा टू रिलीज द फंड, टू इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, इवेल्युएट द स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की कितना डेवलपमेंट हुआ है प्रोजेक्ट में, एज वेल एज जो MP होंगे, MLA होंगे, मेयर होंगे, लोकल यूथ, टेक्निकल एक्सपर्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो एडवाइस कर सकते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू टू एंड इनेबल द कोलैबोरेशन. तो ये सारी वर्किंग होगी at the 3 stages. Clear? So financing of the smart cities mission. अब इससे सबसे मूलभूत सिद्धांत ये है that the most important thing in any project is the finance, is the capital. तो इसका finance कहाँ से आएगा? So it is a centrally sponsored scheme. It is not a central centered scheme. Central sector scheme नहीं है. Central sector रहता है, that means 100% contribution would come from state, would come from center, but it is centrally sponsored, that means contribution would be from center as well as states. ठीक है. It requires state government and urban local bodies to contribute equal amount in implementing projects in the smart city proposal. ठीक है. तो इसमें आपके यूनियन गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, प्लस अर्बन लोकल बॉडीज भी होगी. क्लियर? ये सारे मिल करके फाइनेंस करेंगे, इसलिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. So what is the progress made by the Smart Cities Mission? As per the data submitted by the Ministry of Urban Housing and Welfare in 2023, more than 2/3 of total ETHNA projects, 7804 projects under the Smart Cities Mission have been completed. मतलब 60,804 प्रोजेक्ट्स हैं. नो नीड टू राइट द नंबर, मान लो 1-2 बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने आपके एग्जाम आने तक, तो दिस डेटा वुड बी वॉइड. सो आप नंबर को याद मत करो, बट 7800 के जो प्रोजेक्ट है उसमें 2/3 कंप्लीट हो चुके हैं. ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल मिशन है एज सच. ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग का डेटा है. According to the SCM guideline, the union government is expected to provide a financial support of इतना not important, compared to 14,000 crore budget in 2022. बजटरी एलोकेशन उसको हाइक किया गया है, नॉट इम्पॉर्टेंट. बजटरी एलोकेशंस हमें याद नहीं रखने. ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट्स, प्रपोज प्रोजेक्ट अंडर द SCM स्मार्ट सिटी मिशन 6041 वर्थ इतना हैव बीन कंप्लीटेड. आपको इतना याद रखना है कि टोटल प्रोजेक्ट्स में से 6041 प्रोजेक्ट, दैट इज 76% प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट हो चुके हैं, और रिमेनिंग इतना प्रोजेक्ट्स ये फिनिश होंगे बाय June 30, 2024. दिस यू कैन कोट इट इन द स्मार्ट सिटी मिशन का आंसर राइटिंग. ठीक है, कि टोटल 6041 प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड रेस्ट विल बी कंप्लीटेड बाय June 2024. With about 768 projects, Karnataka has topped the list of states with most completed projects, followed by Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Tamil Nadu. तो सबसे ऊपर आपके कर्नाटका है, then you have the Madhya Pradesh, then you have Uttar Pradesh, and then you have Tamil Nadu. And these 4 states have completed the most number of projects that were allocated in the list.
रायपुर, इंदौर, तुमाकुरु इन कर्नाटका, वाराणसी इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द सिटीज जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक तरफ तो आपको मिला कर्नाटका, एमपी, यूपी एंड देन यू हैव तमिलनाडु। दीज वेर द रैंकिंग। और अगर आप स्टेट्स में जाओ तो रायपुर, देन यू हैव इंदौर, देन यू हैव तुमाकुरु, देन यू हैव वाराणसी। ये इनका रैंकिंग है और ये स्टेट से रैंकिंग। क्लियर? बस आपको इसको याद रखना है ताकि आप आंसर राइटिंग में इस डेटा को कोट कर सको। नाउ इस आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है। विल नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कमिटी ऑन इंस्टॉल्ड रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स। एक 14 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है टू एग्जामिन द इंस्टॉल्ड रियल इस्टेट प्रोजेक्ट एंड रिकमेंड वेज टू कंप्लीट देम टू सबमिट दिस रिपोर्ट। हुआ क्या कि इंस्टॉल्ड रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स क्या होती हैं कि जो भी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल आप अगर एक फ्लैट खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप फ्लैट खरीदना चाहते हो, यू हैव मेड द एडवांस टू द बिल्डर, आपने बिल्डर को पैसे दे दिए, कुछ एडवांस कर दिया, आपने अपना एक मान लो 1 CR का फ्लैट है, आपने 70 लाख का उसमें से लोन लिया, 30 लाख आपने खुद से जुगाड़ किया, ठीक है। नाउ यू हैव डाउन पेमेंट द 30 लाख फ्रॉम योर साइड और 70 लाख का आपने लोन करा लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका लोन आपके बैंक अकाउंट से कट रहा है, द बैंक इज पेइंग द लोन, यू आर पेइंग द EMIs, मंथली EMIs। बट अचानक से क्या हुआ, आप जो ये फ्लैट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है इट हैज स्टॉप्ड। अब इसका कुछ फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, ये प्रोजेक्ट स्टॉप हो चुका है बहुत सारे रीजंस की वजह से, विल नॉट गो इनटू द रीजन, बट ये स्टॉप हो चुका है। अब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस कंडीशन एज स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। अब ये सारे जो हैं, अब इसमें आप देखो कि एक घर खरीदने में, मकान खरीदने में एक नॉर्मल इंसान की पूरी लाइफ की सेविंग लग जाती है ना। तो अगर ऐसा होता है तो दैट वुड बी अंडर द कैटेगरी ऑफ चीटिंग, तो ये आपके साथ चीटिंग हो रहा है। तो इसको सुधार करने में गवर्नमेंट ने एक, इस प्रॉब्लम को देखने में गवर्नमेंट ने 40 मेंबर की कमेटी बनाई है और उनका ये मैंडेट है या फिर उनका ये ऑब्जेक्टिव है टू रिकमेंड वेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स एंड सबमिट द रिपोर्ट। सो बैकग्राउंड ये है that the Union Ministry of Housing and Urban Affairs has constituted a committee in March 2023. इस कमेटी के चेयरमैन हैं नीति आयोग के फॉर्मर CEO एंड G20, अभी जो G20 समिट इतना बहुत अच्छे तरीके से हुआ, उसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी, दिल्ली डिक्लेरेशन आया और उसमें बहुत बड़ा रोल जो था वो हमारे शेरपा अमिताभ कांत का था, और वही अमिताभ कांत इज चेयरिंग द 14 मेंबर कमेटी, ठीक है। ही इज एन IAS ऑफिसर, not an IFS. It also included the officials of the Union Finance Ministry, Uttar Pradesh, Haryana state governments, the Insolvency and Bankruptcy Board of India, the National Housing and the Real Estate Regularity Authority, that is RERA, and of Haryana and Uttar Pradesh. तो ये सारे उसके मेंबर्स हैं, मतलब यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स आएंगे, उत्तर प्रदेश एंड स्टेट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल आएंगे, IBBI जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है उनके आएंगे, रेरा के आएंगे, और रेरा के सिर्फ हरियाणा उत्तर प्रदेश के आएंगे क्योंकि केसेस इन्हीं का है, दैट इज दिल्ली NCR का रीजन का ही केस है, ठीक है। द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो 2023 में इस कमेटी का गठन किया गया था, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन और अपना रिपोर्ट सबमिट कर चुका है। सो व्हाट आर द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ दिस कमिटी? Stalled projects. The first question before the committee was how many and where are the legacy stalled projects located? The committee report cited that the Indian Bank Association an estimating of about itna and itna were stretched, and about 2.40 lakh 44% of these were in the National Capital Region, that is NCR. So Indian Bank Association has estimated that 44% इतना का आपका स्ट्रेस प्रोजेक्ट है, एंड उन स्ट्रेस प्रोजेक्ट में जो 44% है, डैट इज अराउंड 45% वो NCR रीजन में ही है, 21% आपके मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है।
The committee concluded that the main reasons for the stress is lack of financial viability, which has led to cost overturns and time delay. तो जो सबसे प्राइमरी रीजन है जो भी ये डिले हो रहा है प्रोजेक्ट का, जो ये स्टॉल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आया, उसमें है लैक ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी, और इसी की वजह से कॉस्ट ओवररन होता है एंड टाइम डिलेज होता है. द कमिटी सेड दैट द वे टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम वुड improve the internal rate of return of this project in order to attract the funding. Now जब कोई भी आपका प्रोजेक्ट अगर आपका स्ट्रेस प्रोजेक्ट बन जाता है, दैट मीन्स आपको उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है. वो कब आपका कंप्लीट होगा इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. सो जब ऐसा ये अनिश्चितकालीन डिले पे चला जाता है, डैट मीन्स कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. तो सबसे पहला काम जो हम लोग कर सकते हैं, और इस कमेटी के रिपोर्ट ने भी बताया है, कि हम लोग सबसे पहले स्ट्रेच प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट लाएंगे. अभी इन्वेस्टमेंट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं आएगी. सो द फर्स्ट वे टू रिजॉल्व इज टू इम्प्रूव द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लगे कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, और देन दे विल इन्वेस्ट फर्दर मोर इनटू दिस प्रोजेक्ट. And in order to make the projects viable to all the stakeholders, that is developer, financiers, land authorities, would have to take a haircut and accept than what is due to them. That means अगर आपको कोई भी एक अपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन को अगर वायबल बनाना है, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सारे स्टेक होल्डर्स मीन जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उनको सभी को आना पड़ेगा आगे, और उनको मिल करके स्टेप्स लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल. उसमें क्या है कि आपके जो डेवलपर्स है, डैट इज बिल्डर्स, फाइनेंसर डैट मीन बैंक्स, लैंड अथॉरिटीज़, वो सभी को एक हेयर कट लेना पड़ेगा. हेयर कट का मतलब है कि अगर मान लो अगर आपको 10 रुपये मिलने वाला है, तो आप 10 से ज़्यादा 8 ही एक्सेप्ट करो. दैट इज़ हेयर कट. सो आप जब तक अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, प्रोजेक्ट वोंट रन. तो सभी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़रूरी है. दैट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय दिस कमिटी. So what are the other major recommendation of the committee? Mandatory RERA registration. The committee began its recommendation by reiterating provisions of the Real Estate Regulation and Development Act of 2016. RERA Act जो है, it mandates that all projects where the land is over 500 square meters or the number of apartments to be constructed is more than 8 are registered with the respective state RERA. Registration of this project would lead to greater transparency. ठीक है. सो व्हाट डज दिस रेरा एक्ट मीन्स? आई वुड फर्दर सिंप्लीफाई दिस कि जो भी प्रोजेक्ट्स, एनी प्रोजेक्ट जिसमें कि लैंड है दैट इज अबव 500 स्क्वायर मीटर्स, या फिर जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट दैट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इज मोर देन 8, तो उनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनके स्टेट रिस्पेक्टिव रेराज में. इससे होगा क्या कि जब उनका एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, इट वुड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी. तो जो भी बिल्डर्स हैं वो कस्टमर्स के मनी को कहीं इलीगल कोई दूसरी जगह पर इन्वेस्ट ना करें, अपने पर्सनल पर्पस के लिए उसको यूज ना करें. इस चीज को कम करने के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगा, और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रजिस्ट्रेशन अंडर द रेरा एक्ट वुड बी बेनिफिशियल. Rehabilitation project package for the stall projects. One of the main recommendation of the committee was for the state government to set up a rehabilitation projects package to get a stall project running again. That means कि अगर आपका अब तो जो प्रोजेक्ट्स जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है ना. अगर कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, भाई वो रुका हुआ है, उससे कोई आउटकम नहीं आ रहा है. नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि वो आउटकम कैसे निकाले. तो सबसे पहले तो एक रिकमेंडेशन है कि स्टेट गवर्नमेंट है, दे शुड सेट अप अ रिहैबिलिटेशन पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज, और वो रिहैबिलिटेशन पैकेज से दे वुड फाइनेंस एंड इंस्टॉल्ड टू गेट द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स रनिंग अगेन. सो ये भी एक रिकमेंडेशन है. ठीक है. द डेवलपर हु साइन अप फॉर द पैकेज
would have to commit the completing the projects in the next 3 years। मतलब मान लो अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसा पैकेज बना देती है, तो जो भी डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको ये प्रॉमिस करना होगा, ये कमिट करना होगा कि वो जितने भी स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं उनको नेक्स्ट 3 ईयर्स में ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। The company gave the example of model package of Noida and Greater Noida. It also includes a zero period for 2 years, starting with the onset of COVID-19 pandemic of 2023, where interest and penalties on the developer by the authorities would be waived. That means जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ है वो डिफरेंट टैक्सेस लेती है, सरचार्जेस लेती हैं और इन तरह की जो चीज़ें लेती है, अगर वो आपको देने में डिले हो जाए, ठीक है, तो दे वुड पनिश देम विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। सो अगर वो 2 साल के पीरियड में आए, दैट पीरियड विल बी काउंटेड एज 0 पीरियड, जिसमें कि आपका कोविड-19 पैंडेमिक था, ठीक है। उन पीरियड में जितने भी पेनल्टीज और इंटरेस्ट है उन सब पे वेव ऑफ मिल जाएगा। दैट मीन्स नाउ द डेवलपर वुड नो हैव टू पे एनी इंटरेस्ट और पेनल्टीज ऑन दिस। डेवलपर would be allowed to get a co-developer on the board to complete the work। That means अगर आपका स्ट्रेस प्रोजेक्ट है, सो आपके इसके फाइनेंशियल में दिक्कत हो रहा है, हो सकता है आपको इसके रनिंग में भी दिक्कत हो, सो व्हाट यू कैन डू इज टू गेट अ co-developer who could give any new idea or who could be a partner in the crime, not in the crime, in the project, to get the project completed। The committee proposed a partial surrender policy in which the developer can give back some of the unused land to the authorities in the exchange of waiver for the dues for the land। So अगर अथॉरिटीज़ के पास अगर किसी डेवलपर का अगर कुछ ड्यूज है और अगर वो एक उनके पास कुछ अनयूज लैंड भी है, तो वो उस लैंड के एक्सचेंज में वो लैंड आप दे सकते हैं अथॉरिटीज़ को और वो अथॉरिटीज़ आपको वेव ऑफ कर देगी। दैट इज़ नोन एज पार्शियल सरेंडर पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें आता है आपका स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। द रिपोर्ट सेड दैट महुआ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, should prepare a detailed scheme using the Swami Fund to proactively finance the stall projects and send it to the finance ministry। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये जो रिपोर्ट है आपका, इसमें बोला गया कि मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री एक प्लान प्रिपेयर करे, डिटेल स्कीम प्रिपेयर करे, जिसमें कि वो स्वामी फंड का यूज करके प्रोएक्टिवली फाइनेंस कर सके स्टॉल प्रोजेक्ट्स को और उसके बाद ये सेंड करे फाइनेंस मिनिस्ट्री को। इट सेड दैट द रिक्वायरमेंट of minimum internal rate of return and the first charge of the Swami Fund should be report। So this was about the other recommendation। So who will implement the land? So आप जानते हो कि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है और जो भी रिकमेंडेशन है कमेटी का, इट विल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट लायबल ऑन दिस। सो अकॉर्डिंग टू महुआ, द रिपोर्ट हैज़ बीन सेंट टू द ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स को भेजा जा चुका है। यूपी में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटीज़ हैव ऑलरेडी मूव टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स। मतलब यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस जो रिपोर्ट है उससे तरफ मूव कर रही हैं, बट देयर इज़ नो डेवलपमेंट एज फार एज अदर स्टेट्स आर कंसर्न। It remains to be seen if the other states would accept the committee's finding and implement the measures followed by it। Clear? तो अब ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स के ऊपर कि उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उन पे चलकर ये प्रोसीड करती हैं या नहीं करती हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने स्वामी फंड पढ़ा था, तो स्वामी स्कीम जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो ये स्कीम आपका आया था नवंबर 2019 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड द प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये इसका बेसिक पर्पस ही ये है कि जो भी स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंप्लीशन को ये डेट फाइनेंसिंग करें फॉलोइंग अंडर द अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग कैटेगरीज। लेकिन ये सारे स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, जो अफोर्डेबल और मिडिल इनकम हाउसिंग कैटेगरीज है उन्हीं को। It also has the objective to provide relief to the real estate developer that would require funding for the completion of the unfinished project and consequently ensure the timely deliveries of homes to the buyer। ठीक है, तो इसमें आपका रिलीफ जो है रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी मिलेगा, जिसमें कि वो स्वामी स्कीम के अंडर में फंडिंग ले सकते हैं
जिसमें कि वो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। अबाउट 1509 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को about 1509 housing projects comprising approx इतना and units fulfill the eligibility criteria benefiting from the scheme। तो इतने अभी तक हो चुके हैं। अगर आपको डेटा याद रहे यू कैन कोट, अगर आपको याद ना रहे तो ना कोट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है इस स्वामी स्कीम के अंडर में? तो फंडिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट, जो कि वैसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा जो ये फॉलोइंग क्राइटेरियाज को मीट करेंगे। अदर वो स्टॉल प्रोजेक्ट है ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट और इनएडुकेट फंडिंग, वो एलिजिबल है। सेकेंड क्राइटेरिया इज अफोर्डेबल और मिडिल इनकम कैटेगरी में होना चाहिए। थर्ड इज नेट वर्थ प्रोजेक्ट, पॉजिटिव प्रोजेक्ट होना चाहिए। फोर्थ इज रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉन रेरा रजिस्टर्ड को नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी फॉर द प्रोजेक्ट्स वेरी क्लोज टू कंप्लीशन, डैट मीन्स अगर आपका प्रोजेक्ट 90% और से 80% तक कंप्लीट हो चुका है तो उनको आपका ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, क्योंकि उसमें जो आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो हाई रहेगा। ठीक है। स्वामी फंड के बारे में पढ़े थे, गवर्नमेंट बैक फंड है एंड इट हैज़ बीन सेटअप एज कैटेगरी 2 ऑफ द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा फंड होता है विच इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल which collect funds from the sophisticated investors, whether Indian or foreign, for investing in accordance with a defined investment policy for the benefit of the investor। So ये कोई भी ऐसा फंड वैसा नहीं है कि आपका गवर्नमेंट ही इसको कम्प्लीटली ओन करती है, प्राइवेटली पूल्ड है। डैट मीन्स आपके प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, और वो अपने डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंडर ही उसमें इन्वेस्ट करेंगे जिसमें कि उनके इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिल सके। द इन्वेस्टमेंट मैनेजर और द फंड ऑफ द SBI कैपिटल व्हिच इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द SBI कैपिटल, और वो ही पूरा होली ओन सब्सिडरी ऑफ SBI है। यही आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी रहेगा। ठीक है। द टोटल कमिटमेंट ऑफ द फंड, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। द मैक्सिमम फाइनेंस पर सिंगल प्रोजेक्ट इज ऑफ 400 crores, हो सकता है ये भी चेंज हो जाए, डू नॉट नीड टू रिमेंबर द डेटा। सो ये वाला आपका समाप्त होता है, ये आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी रैगिंग लॉज और पॉलिसीज इन इंडिया। सो आई थिंक हमें यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, बिकॉज जो आपके ये जो आर्टिकल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, और एक कंटिन्यूटी और कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए विल मेक शॉर्ट वीडियोस, और हम शॉर्ट वीडियो से ही प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू आर देयर टिल द एंड, आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और इसके बाद वाले जो आर्टिकल्स हैं विल कवर इन द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।